ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا. آپ اٹھائیں تو صحیح، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس پہ، اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں، اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر، کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں. حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں، اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی مونچھیں داڑھی نکل رہی ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس بوڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں، حتیٰ کہ سونے والے کے لیے کیا احتیاطیں، جاگنے والے کے لیے کیا تدبیریں، یہ ساری کی ساری سائنس نے لکھی ہیں. ورنہ یاد رکھنا، اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے الفاظ سنیے گا. فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی، کیا لفظ فرمایا؟ اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے. اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں ٹل آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانے گرتے ہیں، تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بوڑھے ہو جاؤ گے. اور لوگ لگ گئے اعمال میں، لگ گئے کہ نظام ہے، بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلی ہیں، چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی، اس چیز کی آگاہی نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا، حضور کے ماننے والے کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا. قلعہ معلّہ، لال قلعہ کو قلعہ معلّہ کہتے تھے، لال قلعہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. ایک عمل ہے جس کو حروف صوامت کہتے ہیں. قرآن پاک کے 29 حروف عربی کے قرآن کے، ان میں 13 حروف وہ ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اس پہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو 543 دفعہ پڑھا جاتا ہے. 4543 543 بار پڑھا جاتا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. حروف صوامت 13 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے، 13 حروف کو اگر ملایا جائے، ان 13 حروف کو، تو وہ 13 حروف بنتے ہیں احدر سستا کلمو. الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، سس، تا، کل، کاف، لام، میم، واو، ہا. بس یہ کتنے حروف بنے؟ 13 حروف. یہ 13 حروف بنے، اور ان 13 حروف کا پورا نظام ہے. جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے، نئے پہننا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے، ایک شرط. دوسری شرط سن لیں، پاک ہو، باوضو ہو، اور اس دوران 543 مرتبہ احدر سستا کلمو. یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا. اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے عزم ہوتا ہے. جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اب اگلا عمل ہے تالے والا. چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی. عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ. صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اس پہ.
कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरी रोजी पे ताले लगे हुए हैं, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। सिर्फ 7 बार आपने ताला इस पे सूरत कौसर पढ़नी है। वो कैसे? सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर। इसकी एक तस्बीह इन्न हवल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है, और दोहराते हुए सख्त 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 और सख्त तसव्वुर अपने लगे हुए तालों का, वो रोजी पे लगे हैं, वो मुकद्दर पे लगे हैं, वो बख्त पे लगे हैं, वो सजदों पे लगे हैं, वो नेकी पे लगे हैं। नेकी करने को दिल चाहता है, नहीं आ सकता। तस्बीह पढ़ने को दिल चाहता है, नहीं पढ़ सकता। नेकी की तरफ कदम उठने को दिल चाहता है, नहीं उठ पाते। जो ताले लगे हैं ना, उनका तसव्वुर करके एक बार सूरत कौसर और 100 बार पढ़ना है इन्न शानिअका हुवल अब्तर, बस। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी? इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अवल आखिर दरूद पाक। तो ये अमल अवल आखिर दरूद पाक, 7 बार सूरत कौसर, और हर बार सूरत कौसर में एक तस्बीह पढ़नी है इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और उसके बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद ना रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना, और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिया तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरहन के दौरान कितनी बार? सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार? आगे फिर सूरत पूरी करनी है, 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अवल आखिर दरूद पाक। सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाहुस समद को कितनी दफा? कितनी दफा? उसके बाद सूरत पूरी करें, फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी, और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला, और तीसरा, बस ये 3 अमल।
अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने हरूफ है ना इसके 543 हैं। किसके? अदद हैं, अदद। हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दे। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं, 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। तीसरी चीज क्या? सूरत इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। आपने अपने नाम के साथ एक नाम जोड़ा है। फरमाया आदम, इसकी वजह से सारी कायनात है, इसी की वजह से है। और जब अम्मा हवा के साथ आदम का निकाह हुआ तो फरमाया ठहरो, हाथ बढ़ाने से पहले इनका हक महर दे। या अल्लाह, क्या हक महर है? फरमाया मेरे एक नबी आएंगे, वो आपकी नस्ल में से होंगे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद होगा। उनके ऊपर एक दफा दरूद पाक पढ़ ले, यही उन हवा का, आदम का हक महर है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसी ने पूछा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से, फरमाया अमीरुल मोमिनीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इसका मफहूम क्या है? फरमाया नेक बीवी। आप फरमाते शानदार दुनिया, शानदार आखिरत। फरमाया नेक बीवी। और अल्लाह के हबीब मेरे कमली वाले ने एक दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह उस बीवी से बचाना जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। और आका ने तो ये फरमाया, आका का फरमान सच्चा है। और मैंने तो यहां तक देखा है कि बीवियां वक्त से पहले बूढ़ा नहीं, कब्र में पहुंचा देती हैं। अगर आप चाहते हैं जिंदगी लाजवाब, बेहतरीन, हाँ, उनकी बात जो कर रहा था, मुझसे कहने लगे एक दुआ है जो आप बताते हैं, मैंने लोगों को बताना शुरू की हुई है और वाकई उसको बड़ा फायदा हुआ है। जो मोती आज मैं आपको देने लगा हूं, जिंदगी में नस्लों के, बीवी के, घर के काम आए। राज क्या है? फरमाया मेरे मुर्शिद ने मुझे एक अमल दिया था, मैं वो अमल करता हूं। उस अमल की वजह से मेरे तीनों बेटे हैं, आखिरी दर्जे के फर्मा बरदार भी हैं, आखिरी दर्जे के नेक भी हैं, आखिरी दर्जे के वली भी हैं और मालदार भी हैं। क्योंकि औलाद अगर फकीर मंगती हो, औलाद अगर तंग दस्त तो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता। औलाद अगर बीमार हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता। औलाद अगर फकीर हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता। औलाद अगर किसी बुरी इल्लत में हो, किसी आदत में हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता। और औलाद अगर नाफरमान हो और घुराए या तीखी आंखों से देखे, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, आंखें ठंडी नहीं होती। तो मैं आज आपको आंखें ठंडी और माँ बाप का दिल ठंडा करने की दुआ बताता हूँ, जो साल से है। रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको। इसमें मैं वो दुआ बताता हूँ, वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी और नस्ल में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, ऐ अल्लाह मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है। ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना
اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کی کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا. یا اللہ تیری رحمت موجود ہے، ایک اور کام بھی کر دے. کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے. اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے. اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے. متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے. صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے. مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. مکہ مکرمہ مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی. میں نے کہا کچھ نصیحت. فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ. ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو. تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین. ہاں گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، محبت اور نافرمانی کا علاج. اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج. میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج. اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج. اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو. آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا. اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر التحیات میں تکرار سے پڑھنا. رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا. اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا. چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں. گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے. اب ایک واقعہ سنیں. 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے. ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا. اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا مٹکے کے اندر، کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا گمان ہے. پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو. ڈر گیا. 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول. سہم گیا. جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا. قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا. مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے. کھودا تو خزانہ نکل آئے. اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. کس نے؟ جس کا خزانہ تھا. اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا. عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا
وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا. کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں. جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا. مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو. دعا اور دعا پہ کامل یقین. تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے. اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی. آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے. اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں. اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے. یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت نہ کی. آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں. آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی، یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی. اچھا، نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے، کینہ پرور نہیں بھی ہے. نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں، یہ میری بات غور سے سمجھیں. اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. نہ، بعضوں کی فطرت میں یہ چیز، ان کی نظر خون میں ہوتی ہے. وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ، اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں، اس پہ نظریں پڑتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے، آگے کیچڑ ہو، آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے، خود کیچڑ والے، وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں. ہمیں بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ کے، نظر بد کھا گئی، حسد کھا گیا، کینہ کھا گیا، اندر کی زہر کھا گئی، بولوں کی زہر، کاٹنے کی زہر، آنکھوں کی زہر، نظروں کا زہر کھا گیا. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے، لاجواب چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی اندیکھی نظر، کوئی ایسی اندیکھی زہر، کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، یا گھر کی طرف سے، یا اولاد کی غم، یا نسلوں کا غم، یا بیوی کا غم، یا بچوں کا غم، کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے. زندگی کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے، زندگی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے النظر حق، العین حق. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا. لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے، گبرو جوان ہیں، اکٹھے ہو کے نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا. جب دولت ہوتی ہے، جب مال ہوتا ہے، جب دولت کا کمال ہوتا ہے، پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے. اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اب میرے پاس مال ہے، اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے. آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے، آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے، آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے، آپ پر چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے، آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وولدی اولاد، یہ سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ،
व वलदी व अहली व माली बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान सरमाया, व वलदी औलाद सरमाया, व अहली घर वाले सरमाया, व माली और माल क्या है, ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान की जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया, जो मिट्टी बची। इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खून खारी है। और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज, वरना नाजायज, कि उसके अंदर शैतान के हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूं। मैं आपका पासबान हूं, मैं आपका मुहाफिज हूं, मैं आपका चौकीदार हूं, मैं आपका खैर खा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं, तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई, बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी है और नुकसान देखा है, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा, या नजरे बद होगी, या कीना होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजरे बद होगी, और उसके खून में नजरे बद है, और उसकी फितरत में नजरे बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5, 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो था ना, उसमें स्टिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था, और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे, आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए, उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की, और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने, मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था। उसके पास टाइम नहीं होता था, पर टाइम नहीं होता। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, और अगर मालो दौलत है, आपके पास सरमाया है, आपके पास रिस्क, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हिफाजत का निजाम नहीं है, हिफाजत का निजाम नहीं है, तो लुटे जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं एक जगह से आया तो एयरपोर्ट से उतरा, एक साहब ने गाड़ी बिठाते कहा, एक मेहरबानी करे, मेरे एक दोस्त हैं, उससे मुलाकात कर ले। मैं कहा ठीक है चले। यहाँ लाहौर में एक इलाका है, उसको टाउनशिप में कहते हैं। मुझे वहां ले गया। एक घर था, उस घर की एक बैठक में 2 पुरानी कुर्सियां पड़ी थी, एक टूटी हुई
टेबल यानी मेज पड़ी थी और एक साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल वीरान उजड़े हुए। उनकी दवाई उस वक्त बनी को 100-150 रुपए की। तो उसने ना उनकी तरफ ऐसे देखा, मैंने लिख दी बाजार से लेनी थी, बाजार से लेनी थी। ये उस दौर की बात है जब मैंने यहाँ लाहौर में अपनी दवाएं बनाना शुरू नहीं की थी। तो उसने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ले लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको तो अपना हाल तो सुना है। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है, अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है। लाहौर की बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती है। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर, इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था, कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था, आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया, सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियां साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। अलाज़े मौजूद हैं, आज भी इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल, आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी, इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था, तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी, बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा, इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की, इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया, इसकी तदबीर क्या सोची, इसका अंदाज क्या सोचा, इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है, मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है, कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे
गोली देखावार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखावार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बंदिश है, हालात है, नाकामियां है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है। अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है। वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है। वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इस पर तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का सवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला न हो और अपने आप वो खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के हाथ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरी पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना। मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं, मैं किसका सफीर हूं, मैं किसका गुलाम हूं। बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो है उनकी ग़िज़ा लगती है, और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छीछड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें
اور शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें तो फौरन कहे बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, नजर बद टूट जाती है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक हमारे इलाके में आदमी था, उसकी नजर बद मशहूर थी। वो चैलेंज के साथ आया, सुनाया कि तेरा पीर दुआएं बताता है, वजीफे बताता है, आप फिर मेरी नजर का भी तोड़ तेरे पास है। चैलेंज के साथ आया, मुझे खुद कहने लगा। मैंने उसको सुना ना कि आ रहा है, कहा मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आके कहा क्या चीज तुड़वानी है? चैलेंज के साथ बाजू, अपनी गर्दन, पसली, सामने पड़ा हुआ घड़ा, दीवार, टारगेट, चैलेंज, गाय मरवानी है, भैंस, बकरी, बोल। मैंने कहा जो जेरा चिल चाहे वार कर, कहा सोच ले, कर कारवार। कहा मैंने उसको ऐसे देखा और बिस्मिल्लाह माश दिल में पढ़ रहा हूं, और उसने अपनी ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर ताकत, ऐसे कहने लगा। मैंने कहा ना कर, आंखें बाहर निकल आएंगी जो मैं पढ़ रहा हूं। कहा उसने अपनी ताकत आजमाई, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। उसने कहा चैलेंज भी आया, मुझे खुद बताया उसने, बोल कौन सी चीज तोड़वानी है? तेरा पीर वो वजीफे बताता है। और उससे लोग डरते थे और उसकी खिदमत करते थे और उसकी माफियां। अच्छा जनाब, जिसके पास चला जाता तो उसकी नाजायज मान लेते थे, अगर ना मानी बर्बाद कर देगा। इसकी नजर के अंदर दो धारी तलवार है। मेरे पास चैलेंज करके क्या तोड़ूं, क्या बर्बाद करूं? मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे कर। और कहा मैंने भी सख्त जलाल और तवज्जो के अंदर ऐसे तसव्वुर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको देख कैसे। हा मेरी ताकत ने, मेरे रब की ताकत ने, इस दुआ ने उसकी शैतानी ताकत और नजर बद को तोड़ के रख दिया। और अगली बात सुने, उसके बाद उसकी नजर खत्म हो गई, सल्ब हो गई, सल्ब हो गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने जिन्नात को हदिये देने शुरू किए और जिन्नात को माल चीजें देनी शुरू की, और जिन्नात ने जो है हमारे साथ फिर कहना शुरू कर दिया कानों में आके, आप हमें इतना कुछ देते हैं, आप इतना माल देते हैं, इतनी चीजें देते हैं, हमें आप शर्म आती है, हया आती है, हम आपको नुकसान पहुंचाए, हमें फला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया था और हम उसके ऊपर पलट कर जा रहे हैं। एक हदिये दें उन्हें, गोश्त, हड्डियां, चीचड़े, ये चीजें, चील कवों को डाल दें, बिल्लियों को डाल दें, हदिया दें। दूसरी चीज बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज जो है ना, तीसरी चीज सदका, माल का सदका और गोश्त का सदका। उसका वाकया भी सुन ले। ये शुजाबाद का वाकया है, मुल्तान के साथ एक शुजाबाद, नवाब शुजाउद्दौला होते थे, उनके नाम पे शुजाबाद है। लगता है मेरा तसव्वुर करके आप मसनून दुआएं, हिफाजत वाले अमाल, तस्बीहात, 6 बिस्मिल्लाह, 500 होते नहीं पढ़ रहे। चलो मर्जी है, मेरी तरफ से वफा होगी। तू जफा की हद कर, मैं वफा की हद करूं। तो अपनी ताकत आजमा, मैं अपनी ताकत आजमा। तुझे तेरी अदा पसंद बेवफा की, मुझे मेरी अदा पसंद वफा की, चल जा। तो वो एक कातिल के मुकदमे में चला गया, कत्ल नहीं किया था, बाकी छूट गया, यह गरीब था। सारा मलबा इसी के गले में फंदा आया। 302 में हद तक इसको फांसी की सजा हो गई। दिनों का इंतजार हो रहा, वो दिन भी आ गया जिसकी सुबह इसको फांसी होनी थी। और मुलाकाती आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। माँ बूढ़ी थी, आई, अम्मा रोई कि बेटा तू ही एक बेटा था सहा। लगा अम्मा तेरी को, अम्मा पूछ लेगी तेरी कोई वसीयत। मेरे अम्मा, मेरी वो बच्ची थी ना जो गाय को, बिछिया को मैंने पाला था, वो खड़ी है, वो मैं कुर्बानी कर दो, खैरात कर दो। अब मैं तो रहा नहीं, तो मैंने तो उसको गाय, फिर उसको पाला था शौक से, मेरी गाय होगी, फिर दूध पीऊंगा, फिर उसके बच्चे होंगे वगैरह। माँ ने कहा बेटा अगर तू नहीं रहा तो मैं भी उसको। माँ ने जाते ही आखिरी मुलाकात की और जाते ही उसको ज़बह करा के गोश्त गरीबों में तकसीम करा दिया, उसको खैरात कर दिया।
सुबह जब तख्तेदार पे उसको चढ़ाया, वक्त मुकर्ररा के बाद जब उसको उतारा तो वो जिंदा था, उसकी गर्दन खिंच चुकी थी। एक वक्त मुकर्रर होता है, उस देखा जाता है, उसको फंदे से निकाल के अस्पताल में कई दिनों के बाद होश आया, फिर वो ठीक हो गया। गर्दन उसकी खिंच के बहुत लंबी, आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साल जिंदा रहा।